صوبے میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ عناصر ان کو ملکی مفادات، صوبے کے مفادات اور اپنے غریب عوام کے مفادات سے زیادہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات عزیز ہیں۔ وہ ہر چیز کو سیاست کی نظر کر کے اپنی ریاست، حکومت اور اداروں کے لیے مشکلات کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اور جہاں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ ظلم ہوگی، زیادتی ہوگی، ہم جس طرح پہلے بھی جیسے آپ لوگ کے سب کے علم میں ہے کہ تربت میں ایات بلوچ کا واقعہ آیا، جس کو آج تک پولیٹیکل پارٹیز پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو رسوا کرنے اور بدنام کرنے کے لیے ہر فورم میں لوگوں کو حقیقت بتانے سے گریز کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایات بلوچ کے ساتھ ظلم ہوا، ایات بلوچ کو ایک ریاستی ادارے کے اہلکار نے مارا، سب نے جو ہے قومی اسمبلی میں، انٹرنیشنل فورمز میں اس کو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ خدا نخواستہ اس میں ریاست شامل ہے۔ ریاست نے اپنے ایکشنز دکھائے، وہ جس ادارے کے لوگ تھے وہ پکڑے گئے، وہ گرفتار ہو گئے اور ان کو سزائے موت بھی ہو چکی۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں ریاست اپنے لوگوں کی کو انصاف فراہم کرے یا کوئی قدم اٹھائے، آپ لوگ صافی حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ریاست اور ادارے کے ساتھ مثبت کاموں میں، صحیح کاموں میں جب جا رہے اس کو ہائی لائٹ بھی کریں اور دنیا کو یہ پیغام بھی دیں کہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارے ادارے جو ہے ملک میں چاہے سیکیورٹی کا معاملہ ہو، کسی معاملے میں وہ اپنی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ڈنک کا واقعہ پیش آیا، ادھر جو ہے بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ریاست ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، حکومت ان کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ آپ سب نے دیکھا سب نامنیٹ لوگ سب گرفتار ہو گئے۔ ریاست کسی کے ماتحت نہیں ہے، ریاست مجرم کو مجرم کی نظر سے دیکھتی ہے۔ لیکن میں اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے آپ اپنی زیادتی کا ازالہ کرنے، اپنے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر خامیوں کو دور کریں، اپنے مطالبات جو جائز ہیں ان کو منوا لیں، لیکن ان عناصر کے ہاتھ میں بالکل نہ آئیں جو آپ کی پیاروں کی لاشوں پر اپنی سیاست کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے لیڈرز جو خود بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، بیرون ملک زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ یہاں ایک پیغام بھیج دیتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے اپنی ریاست کے اور اپنی حکومت کے نظام کو مفلوج کریں تاکہ اس سے آپ کی ریاست کو اور آپ کی حکومت کو نقصان پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب بھی اس معاملے میں پولیٹیکل پارٹیز کی ہمدردیاں نہ لوائقین کے ساتھ ہیں، نہ لوائقین کے مطالبات کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے جو ہے سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں۔ وہ اس آڑ میں ان لاشوں کے، ان معصوم لوگوں کی جن کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، ان معصوموں کی لاشوں پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے لوائقین سے پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں، ACS اوم صاحب، کمشنر کوئٹہ، ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں، ان کے کافی مطالبات کو ہم نے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مان بھی لیا ہے۔ اس تمام واقعے کو دیکھنے کے لیے، اس کے محرکات کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں ہوم منسٹر ہوں گے، جس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، جس میں جس کی ضرورت کمیٹی میں لوگوں کو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے اس کو جو ہے ہم اس کمیٹی میں اگر اس میں کوئی ادارہ قصوروار ہوتا ہے، کوئی شخص قصوروار ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ FIR ایک قانونی چیز ہے، FIR کے بغیر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا باڈی کی ضروری ہے کہ آپ جو الزامات لگا رہے ہیں آیا پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ چلے کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا جو ریاستی اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ درست ہیں۔ تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا جا رہا ہے، تعاون نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کیس کو ایک منطقی انجام تک لے جائیں۔ میں ابھی بھی آپ میڈیا کے دوست
तमाम पाकिस्तान के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों को गवाह बना कर कहता हूँ कि लवाकिन आ जाएं, लवाकिन गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। उनके जो ख़दशात हैं वो तमाम दूर हो चुके हैं। ख़दशात जो दूर नहीं हुए हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़ाती मुफादात हैं, जो उनको हुकूमत किसी तरीके से उन अज़ाइम को कामयाब होने नहीं देगी। जहाँ तक DC इनका एक मुतालबा है कि ताज बीबी और उनकी फैमिली के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। ACS ओम साहब को कहा गया है कि इस मामले में जितनी भी उनको सिक्योरिटी ज़रूरत है वो सिक्योरिटी आप उनको फराहम करें। DC डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का कहा गया है। अगर लवाकिन की तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लवाकिन समझते हैं कि उनका कसूर है, बिल्कुल उसकी तहकीकात होगी। ये कमेटी बिल्कुल उसकी तहकीकात करेगी और ये हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए यकीन दिलाएगी कि सारे लोग जो हैं ये फैमिलीज़ अपने इलाक़ों में जाकर आबाद होंगे। तो मैं एक मरतबा फिर आप लोग की तवज्जुह से लवाकिन से अपील करता हूँ कि आपके प्यारे जो शहीद हो चुके हैं उन प्यारों को एहतराम के साथ, उन प्यारों को इज़्ज़त के साथ दफनाएं। आपके मुतालबात आपकी हुकूमत अभी भी आपके साथ बैठी है, बैठ के हल करेगी। आपके मुतालबात को जो अब मैंने आपको कहा अक्सर तकरीबन तमाम मुतालबात हल हो गए जो मुनासिब हैं और जिनके हैं। बाकी वो मुतालबात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से या उनके एजेंडे में शामिल होंगे, किसी को जो है अपनी सियासत आगे ले जानी है, किसी को आवाम को ख्वार करना है, किसी ने आवाम को हुकूमत की उस मशीनरी को वो करना है, उन अज़ाइम को, और किसी को अगर इस एहतजाज के आड़ में बाहर जाना है और बाहर दुनिया में रहना है कि इन लाशों को इस्तेमाल करके, तो हुकूमत ऐसे किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। हम अपने लवाकिन के उनकी लवाकिन के साथ हैं, लवाकिन के साथ हमारी मुकम्मल हमदर्दियाँ हैं। लेकिन लवाकिन से मैं यही अपील करता हूँ कि वो इन सियासी पार्टियों के शिकंजे में ना आए, इनके खेल में ना आए और आके हुकूमत आपकी है, हुकूमत आपके लिए बैठी है, आपके मसाइल हल करने के लिए बैठी है और हुकूमत ने आपके मसाइल हल भी किए हैं। तो आकर आप हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि ये हमारे जो प्यारों के लाश पड़े हुए हैं इनको हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफना दें। अच्छा जियाद साहब, उन्होंने उनका अहम मुतालबा ये है कि FC को बलूचिस्तान से हटाया जाए, इस पर कितना गौर किया आपने? FC को बलूचिस्तान से हटाया जाए, निकाला जाए। देखें, ये एक ऐसा मसला है, आप लोग यहाँ देख रहे हो, हम सबसे ज़्यादा आप लोगों को इन चीज़ों का इल्म होता है। आप लोग का काम ये सुबह से शाम तक चीज़ों पर नज़र रखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। इस टाइम हमारे ख़ित्ते के हालात, हमारा हमसाया मुल्क जो 20 साल से मेरे ख़्याल में दुनिया की तमाम ताकतें वहाँ बैठ कर एक मुल्क को कंट्रोल ना कर सके, उस मुल्क में बैठ कर पाकिस्तान मुखालिफ हिंदुस्तान की सूरत में हमारे दुश्मन बैठ कर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। 70,000 बंदा जो है शहीद हुआ है, 70,000 बंदे शहीद हुए हैं। तो हमने ये FC, ये फ़ौज किस लिए रखा है? हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है ताकि हम अपने लोगों को इनके ज़रिए सिक्योरिटी दे दें। अभी आप एक गैर जानिबदार तज्ज़िया कर लें कि इस टाइम जो ख़ित्ते की नज़रें बलूचिस्तान पर हैं, दुश्मनों की जो नज़रें बलूचिस्तान पर हैं, हम अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें। हमारे पास हमने किसी एक फ़र्द के कहने पर फोर्सेस को नहीं रखा है या किसी की ख्वाहिश पर। यहाँ के अवामी नुमाइंदे आते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस आते हैं कि हमारे इलाकों में दहशत गर्दों की वजह से दहशत गर्दी होती है, यहाँ सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो हमारे सिक्योरिटी इदारे ही हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार है, वही हमें सिक्योरिटी देंगे। अच्छा मीर साहब, आपने कहा था कि रिश्तेदारों की जितने मुतालबात हैं सब हम लोग उलमा लिए। FIR दर्ज तो एक कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि आप लाशें उठाकर इधर आके बैठे हैं, इसका एक कानूनी तरीका होता है, इसका पोस्टमार्टम होता है, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, उसके FIR आता है। आप किसी के ख़िलाफ़ FIR काट सकते हो, आप आ सकते हो, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक हर चीज़ होता है। अच्छा सर, ये 2 तीरों से यहाँ पर बैठे हैं, वज़ीर आला के बिल्कुल घर के करीबी, वज़ीर आला अखलाकी तौर पर इनसे क्यों नहीं जाते, मुलाकात नहीं करते कि मुतालबा नहीं सुनते? देखिए, मसला ये नहीं है कि मेरा या वज़ीर आला का उनसे मुलाकात, मसला ये है कि जिस परेशानी की वजह से वो आके बैठे उनका मसला हल करना।
तो तमाम सरकारी मशीनरी वज़ीर आला और गवर्नमेंट की मशीनरी है। वज़ीर आला की मशीनरी जिस तरह मैंने आप लोग को कहा मुसलसल ACSO कमिश्नर कोयटा अपनी टीम के साथ मुसलसल उनके साथ राब्ते में है और उनकी हर बातचीत वज़ीर आला तक और वज़ीर आला की हर बात उन तक उसी टाइम पहुंच जाती है। सर एक चीज़ देखने में आ रही है, एक चीज़ अगर आप लोग स्टडी कर लें, देख लें, क्राइम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। इसको हम आइडियल पोजीशन नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान के हालात या कोयटा के हालात आइडियल चल रहे हैं, लेकिन आप लोग इन्वेस्टिगेशन वो भी कर लें, जर्नलिज़म, उसमें आप लोग देखें कि पिछले 20 साल से आप लोग क्राइम रेट्स निकाल दें, दहशतगर्दी के भी क्राइम रेट्स निकाल दें, आप लोग ये जो हमारे लोकल क्राइम्स हैं इनके भी क्राइम रेट्स निकालें, वो ख़त्म नहीं हुए, वो ज़रूर हैं, मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा इधर हर चीज़ को पॉलिटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ अगर कोई मासूम दहशतगर्दों के शिकार होता है तो उसको कोई दुनिया में कोई सियासी पार्टी वाज़ेह नहीं करता है कि आज दहशतगर्दों ने हमारे इतनी मासूम लोग मारे, लेकिन अगर कोई चोर एक मोटरसाइकिल चोरी करता है तो उसको हम असम्बली में भी ले जाते हैं, मेरे ख्याल में कुछ लोग तो उसको अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुंचा देते हैं। मीर साहब ये बताएं कि अभी डेडलॉक है किस चीज़ के ऊपर, और अभी लवाहिकीन अगर इस्लामाबाद जाने का ऐलान करते हैं तो हुकूमत उनको जाने देगी? डेडलॉक इस बात पर है कि सियासी पार्टियां अपनी मुफादात चाहती हैं और अपनी मुतालबात चाहती हैं। गवर्नमेंट सियासी पार्टियों के मुतालबात और मुफादात नहीं देखेगी, गवर्नमेंट जो है लवाहिकीन के साथ खड़ी है। खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने है, उसको ना मैं एक उंगली से छुपा सकता हूँ ना आप छुपा सकते हैं। ACS ओम अभी भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बैठते हैं, वो आधी रात तक उनके साथ राब्ते में हैं, उनके मुतालबात इधर लाते हैं, इधर उन पर डिस्कशन होती है, यहाँ से वहाँ जाते हैं। ये ऐसे जिस तरह रोड पर जाते हुए किसी ने बात की कि कोई नहीं जा रहा है, इतना गवर्नमेंट इतनी भी वो उसके सीने में भी दिल होता है, वो भी इसी आवाम से चुना हुआ होता है, वो अपने आवाम को इस तरह 3 दिन से गवर्नमेंट भी सुकून में नहीं रहती कि उसके आवाम इस तरह ख्वार हो, वो भी ज़रूर ट्राई अपनी कोशिशों में लगा रहता है। तो इसमें हमारी टीम 24 घंटे लगी रहती है, ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है। शमीर साहब, आपने कल बयान दिया था कि देखें, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुतालबात जायज़ मुतालबात वो हैं जो गवर्नमेंट उनको कर सकती है। अभी एक तरीक़ाकार होता है कि आप आते हो कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, सलाम आते हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मैं आप और सलाम की बात से किसी एक पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, मैं तहकीकात करूँगा एक कि आप सही कह रहे हो या ये सही कह रहे हैं, फिर उसके बाद एक नतीजे पर आ सकूँगा। अभी इस गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ है, इनका एक अपना मौक़िफ़ है, इसलिए अपोजिशन समेत होम मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी है कि वो देखे कि कसूर किसका है, किसके खिलाफ FIR काटी जाए।